Area of triangle Heron's formula. Revision worksheet for class 9 of this chapter, Heron's formula. Okay. Now the question number 1 is, using Heron's formula, find the area of triangle whose sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter. These are the three sides of Heron's formula. Take first A equal to 40 meter, B equal to 32 meter and C equal to 24 meter. Okay. Now first find the semi-perimeter. Semi-perimeter is A plus B plus C by 2. It means 40 plus 32 plus 24 by 2. Now add 4 to 6, 96 by 2. It is equal to the 48. Okay. Now the formula of area of triangle. Under root S minus A, S minus B and S minus C. अब हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमको फॉर्मूले में पुट करना है क्या, 48 माइनस 40, 48 माइनस 32 and 48 minus 24. Okay. Now subtract 48, 8, 16 and 24. अब देखिए इसको हमको पेयर में बनाना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर में. अब यहाँ पर हमको 8 दिख रहा है तो हम 8 भी कर सकते हैं. 8 इंटू 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2. ओके. 48 क्या हो गया, 8 इंटू 3 इंटू 2. 8 को 8 लिखेंगे क्योंकि सब 8 का मल्टीपल है, इसलिए मैं 8 को 16 8 इंटू 2 एंड 24 8 इंटू 3. ओके. नाउ मेक पेयर ऑफ 8. 8 कितनी बार है, 1 2 3 4. अगर 4 टाइम्स है तो यहाँ कितना आएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में, और 3 1 पेयर एंड 2 इज 1 पेयर. नाउ प्रोडक्ट. ओके. It is 64 into 6. 384 meter square. This is the area of triangle. Same question second है, 5 centimeter, 12 centimeter and 13. A equal to 5 centimeter, B equal to 12 centimeter and C equal to 13 centimeter. Same process. सबसे पहले A निकालेंगे, 5 plus 12 plus 13 by 2. It is equal to the 30 by 2, 15. Now area. सेम फॉर्मूला, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, फॉर्मूला वही है, S 15, 15 minus 5, 15 minus 12 and 15 minus 13. Okay. Now the answer is 15, 10, 3 and 2. Now prime factorize. 5 into 3, 15, 5 into 2 and 3 into 2. Check in pair. 5 2 times, it means 5, 3, 2. It is equal to the 30 centimeter square or the square centimeter. Next question number 2. Find the area of an equilateral triangle with side 10 centimeter. Area of triangle of an equilateral triangle. Side equal to 10 centimeter. Okay. The area of an equilateral triangle. फॉर्मूला दिए है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी. इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर. रूट 3 यही है, 4 यह है, साइड हमारी 10 है, यानी 10 इंटू 10. काटेंगे इसको. इट इज इक्वल टू द 25 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके.
Question number 3 is find the area of triangular park whose sides are 120 meter, 80 meter and 50 meter. The sides are given as the 120 meter, 80 meter and 50 meter. B equal to 80 meter or C equal to 50 meter. This is a scalene triangle, different sides. First find semi-perimeter. 120 plus 80, 200 plus 50, 250 by 2. It is equal to the 125 meter. Okay. Now area. Formula same. S minus A, S minus B and S minus C. Okay. Right. S is 125. 125 minus 120. 125 minus 80. And 125 minus 50. Okay. Just put the values of A, B, C and S. Now subtract 125, 5, it is equal to the 45 and it is equal to 75. अब देखिए मेरे पास यहाँ 25 इंटू 3 है, ये 25 इंटू 5 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 25 इंटू 5. एक 5 यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या होगा 5 इंटू 9 मीन्स 3 इंटू 3. 75 इज 3 इंटू 725. क्योंकि जब मुझे पेयर दिख रहा है, जरूरी नहीं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करें, इसको पेयर में हमको लेना है, तो 25 बाहर आएगा. अब देखिए यहाँ 2 5 है, एक 5 आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 आएगा और एक एक बच गया यानी √15. ओके. 375 मल्टीप्लाई कीजिए 125 इंटू 3, 375 √15 मीटर square. This is the area of park. Okay. Next question number 4. अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा. The find the area of triangle whose perimeter is 180 and two of the sides are 80 and 18. The perimeter equal to 180 centimeter. Side A is 80 centimeter. B equal to 18. Perimeter equal to sum of three sides. 180 equal to 80 plus 18. C equal to 180 minus 98. It is equal to the 82. 82 centimeter. Now S is equal to perimeter divided by 2. Perimeter is 180 by 2. It is equal to the 90 centimeter. Now the formula of area and put the values. Direct. S minus A, S minus B and S minus C. Okay. Solve. 90, 10, it is equal to the 72 and 8. Okay. Now again 9 it means 3 into 3 into 10. यहाँ 10 है तो हम लोग यहाँ 10 ले सकते हैं. यहाँ पर 9, फिर 9 को 3 into 3, 9 into 8 72 and into 8. Make pair. The answer is 3 into 10 into 3 into 8. It is equal to the 720 centimeter square. Next question number 5. Question number 5 is the perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter. The ratio of the two equal sides to its base 3:2. Find the area of triangle. Perimeter 32 है और ratio of two equal sides and base. Okay.
perimeter equal to 32 centimeter. Equal sides to the base. रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2. इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल साइड्स कितनी हो गई? 3x and 3x, and base equal to 2x. The perimeter is sum of three sides. X equal to 32 by 8. It means 4. Now the equal sides, and A equal to 3x. 3 into 4, 12. B 3x. 3 into 4, 12. And C equal to 2x. 4 into 2, 8. And the semi-perimeter equal to perimeter by 2 is equal to 32 by 2, 16. Okay. Now area. S minus A, S minus B, and S minus C. Sixteen minus 12, 4, 8. फिर पेयर बनाएंगे. ये क्या हो जाएगा? 4 into 4, 4 into 4, 4 into 2. यहाँ पर 4, 4. फिर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 2. फिर 2 निकलेगा. 4 into 4 into 2, √2. जो पेयर में नहीं है वो अंदर ही रहेगा. 32 √2 स्क्वायर सेंटीमीटर. Next question. The question number 6. The perimeter of the triangular field is 420 meter and its sides are in the ratio 6:7:8. Find the area of triangular field. The perimeter equal to 420 meter, and the ratio in the sides A is to B is to C equal to 6:7:8. यानी A इक्वल टू क्या हो गया? 6x, B इक्वल टू 7x, and C इक्वल टू 8x. Now the sum of these three sides equal to perimeter. 6x plus 7x plus 8x equal to 420. It means 21x. 13 plus 8, 21x equal to 420. X equal to 420 divided by 21. It is equal to the 20. जब x equal to 20 है तो साइड्स क्या हो जाएगी? 6x. 6 into 20, 120 मीटर. B 7 into 20, 140 मीटर. And C equal to 8 into 20, 160 meter. Okay. Now semi-perimeter. Perimeter is given that 420 divided by 2. It is equal to the 210 meter. Now find the area. The formula of area is same. S is the 210. 210 minus 120. 210 minus 140. 210 minus 160. Root 210 minus 120. It is equal to the 90. 210 minus 40, 70. Minus 160, 50. Okay. Now here is the 4 zeros. तो हम इसको अलग कर देंगे. 21 को लिखेंगे 7 into 3 into 10. 9 को लिखेंगे 3 into 3 into 10. सेम 70 को 7 into 10. एंड 50 को 5 into
10। तो सबसे पहले 10 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी स्क्वायर रूट में क्या आएगा 2 टाइम्स 10। अब 7 को देखेंगे 1 2, 2 टाइम्स 7 यानी 7। 3 को 1 2 3, 3 3 बार आया है तो यानी एक ही पेयर बाहर आएगा, अंडर रूट में 3 रह जाएगा और 5 रह जाएगा। क्या रह जाएगा 3 × 5, क्योंकि 5 एक ही बार आया है और 3 3 बार है, तो आंसर हो जाएगा 2100√15 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12, द हाइपोटेनस इज 5, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, देखिए द क्वेश्चन इज हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 5 centimeter. Now the two sides of right triangle are A and B. Okay, so now perimeter is given that the 12 centimeter. So A plus B plus 5 equal to 12 centimeter. So in this question A plus B equal to 12 minus 5, 7 centimeter. Okay, now by the using Pythagoras theorem, A square plus B square equal to 5 square, it is 25. Okay, this is the equation number 1, this is 2. Okay, now squaring equation number 1, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना रखेंगे 25। ओके, तो 2ab इक्वल टू 49 माइनस 25, इट इज इक्वल टू द 24। ab इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12। ओके, इतना पता चल गया। अब हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर 4ab माइनस कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। ये भी एक तरीके का फॉर्मूला है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा 7 स्क्वायर, 4ab मीन्स 12, यानी 49 माइनस 48 इट इज इक्वल टू द 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 है, तो a माइनस बी कितना हो गया 1। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल टू 7 है और थर्ड में a माइनस बी इक्वल टू 1, तो इससे हमको a और b दोनों मिल जाएंगे। दिया है एक इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 3 है। एडिंग 1 and 3, अब हम लोग दोनों को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 and 3, देखिए ऐड करने से b भी कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2a इक्वल टू 8। देख लीजिए तो a इक्वल टू कितना आ गया 8/2 इक्वल टू 4। सेम b निकालना है तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 7, a की जगह 8 रखेंगे, नहीं a की जगह 4 सॉरी, तो b इक्वल टू 3। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है, ये 4 निकली और ये 3, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब आपका बेस कितना है 3, हाइट इज 4, काट देंगे, आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8, find the area of triangle with perimeter 22 centimeter, one side is 9 centimeter and the difference of other two sides is 7। ओके, देखिए पेरीमीटर हमको दी हुई है 22 सेंटीमीटर, वन साइड इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस विद द अदर टू साइड्स b माइनस सी इक्वल टू 7, जहाँ पर b ग्रेटर है c से, मतलब b लाइन बड़ी है। अब देखिए अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर। a प्लस बी यहीं रहेगा,
ए अगर 9 लेते हैं तो ए इक्वल टू 9, बी प्लस सी इक्वल टू 22, यानी बी प्लस सी इक्वल टू 22 माइनस 9, 13। ओके, और हमको दिया है b माइनस सी इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम अभी पिछले क्वेश्चन में जो किए थे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। देखिए ऐड करते हैं तो क्या होता है, b माइनस सी प्लस LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में, c कैंसिल हो गया, यानी 2b इक्वल टू 20। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 20/2 10। और c निकालने के लिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे b प्लस सी इक्वल टू 13। जस्ट अगर b इक्वल टू 10 है तो c कितना हो गया, 13 माइनस 10, 3 सेंटीमीटर। 13 माइनस 10 यहाँ लिख सकते हो तुम लोग, c इक्वल टू 13 माइनस 10। अब हमको निकालना है एरिया। ओके, तो एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितनी दी हुई है, 22। 22 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू द 11। नाउ पुट इन द फॉर्मूला s माइनस a। ओके, a is 9, s माइनस b 10, s माइनस c। ए बी सी तीनों दिख रहा। अब सॉल्व कर देंगे इसको। 11 माइनस 2 1, सॉरी 11 माइनस 3 8। ओके, क्योंकि s तो 11 है। 8 टू जस्ट 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल with perimeter 22 and sides 9, 3 and 10. Okay. Question number 9. Using Heron's formula, prove that the area of an equilateral triangle with side A is √3/4 a square. हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया प्रूव करना है बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर A। और पेरीमीटर क्या हो जाएगी, देखिए पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस a, इट मीन्स 3a। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 3a/2। और तीनों साइड्स तो a ही हैं, b भी a के बराबर है और c भी a के बराबर है। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया। s इज 3a/2। अब ये क्या हो जाएगा, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, क्योंकि तीनों तो सेम है। ओके, नाउ 3a/2। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2a यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा, a/2। सभी में क्या बचेगा, a/2। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालना है, नीचे 4 बार 2 है तो 2 बार 2 आएगा, ऊपर में 4 बार a है 2 बार आएगा, और √3 पेयर में नहीं है, वो अंदर ही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, 10th and last question. The perimeter of a right triangle is 144 centimeter and its hypotenuse measures 65 centimeter. Find the lengths of other two sides and calculate its area and verify the result by using Heron's formula. ये एक सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोग पहले ऊपर बनाए थे उसी तरीके से बनेगा सेम। देखिए ये राइट ट्राइंगल है, hypotenuse is given that 65. Suppose these sides are A and B. Okay, the perimeter is given that 144 centimeter and the one side निकालनी है, तीनों का सम क्या होता है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 144। हमको C दी हुई है सपोज, तो A प्लस B प्लस 65 इक्वल टू 144। तो A प्लस बी यहाँ कितना आ जाएगा, 144 माइनस 65, इट इज इक्वल टू द 79। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
by using Pythagoras theorem, a square plus b square equal to 65 square. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 65 स्क्वायर होता है 4225. कैसे करते हैं? 6 7 जा 42 और 25. ओके, नाउ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना निकलेगा? 79 स्क्वायर. फॉर्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 79 स्क्वायर इज 6241. ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमको? 4225 प्लस 2ab. यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? 2ab की वैल्यू. इसमें से इसको माइनस करिए तो बचेगा 6 1 0 4225 माइनस 6 by 2016. इट मीन्स ए बी इक्वल टू, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 1008 या फिर 2016. अब हमको निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर. बेसिकली हमको चाहिए क्या? a माइनस बी. a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ? 65 का स्क्वायर. a प्लस बी कितना निकला था? 79 सॉरी 79 स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4ab मीन्स 4 इंटू 1008. तो ये हो गया 6241 माइनस 4032. इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 2209. ओके, और फिर इसको 2209 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप लोग अपने से निकाल के देखिएगा. मैंने निकाला, इट इज इक्वल टू द 47. a प्लस बी इक्वल टू 79 एंड a माइनस बी इक्वल टू 47. ये इक्वेशंस को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? 2a इक्वल टू a इक्वल टू 63. कैसे आया? 126 डिवाइडेड बाई 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, यानी 63 प्लस b इक्वल टू 79. b इक्वल टू 79 माइनस 63. इट इज इक्वल टू द 16. ओके, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. राइट ट्राइंगल 1/2 16 इंटू 63. काट देंगे 8 से और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 504 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आगे क्वेश्चन कहता है इसी सेम एरिया को वेरीफाई करेंगे हम लोग किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से. अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए पेरीमीटर कितनी है इसमें दी हुई थी क्वेश्चन में? 144. तो सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? 144/2 इट मीन्स 72. और हमको ए बी सी तीनों साइड पता है. एक साइड आपकी निकली है, बी निकला है आपका कितना? 16. ए है 63, बी 16 और सी 65. ये क्वेश्चन में दी हुई थी. अब एरिया निकालने के लिए रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ओके, अब घटाइए इसको. 72 माइनस 63 इज 9. 72 56. It is equal to the 7. Now factorize. Okay, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 8 इंटू 9. ये 9 है,
ये क्या हो गया 9 इंटू 7 और 7 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर पेयर में क्या आ गया 9 7 इंटू सॉरी इट इज 56 ना, 8 9 इंटू 9 और ये हो गया 7 इंटू 8। ओके, पेयर इज 7 8 9, 2 7 है, 2 8 है और 2 9। मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 9, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला।